itself is a target for crime. So the correct answer is both are true because साइबर क्राइम का मतलब ये रहता है जहां पे टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर को यूज करके क्राइम किया जाए इज नॉट यू कैन से कम अंडर साइबर क्राइम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Which of the following does not match with the objective of free software? तो फ्री सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सही नहीं है. पहला तो ये कि इट गिव्स यूजर फ्रीडम टू यूज प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस. बिल्कुल सही बात है, आप प्रोग्राम को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकंड इज सेइंग इट गिव्स यूजर फ्रीडम टू स्टडी फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोग्राम विच इज अगेन एब्सोल्युटली राइट. आपको पूरी परमिशन है कि आप पूरे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करें. The next is saying that it gives user freedom to redistribute copies to others and get benefited with incentives, which is absolutely not permitted by free software. क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं, दैट्स फाइन, बट उसके अगेंस्ट आप इंसेंटिव या मॉनेटरी बेनिफिट अपना देखेंगे, सो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. एंड इट गिव्स यूजर फ्रीडम टू अपडेट द प्रोग्राम एंड रिलीज अपडेटेड वर्जन पब्लिकली फॉर कम्युनिटी बेनिफिट्स is again correct one. So the correct answer for this question is option number C. The next question is asking that which of the following is not considered in the Creative Commons license. Well, Creative Commons license में movies, image, books ये सभी तो Creative Commons license के द्वारा मिलते हैं. Software is something जिसके लिए आप जनरल पब्लिक लाइसेंस को अप्लाई करते हैं या वो Creative Commons लाइसेंस में नहीं आता है. अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. IPR gives IPR in the sense intellectual property right. It gives owner right to decide how much information he she can share with user is correct. IPR encourages creator to invent new ideas, design and software is again correct. IPR ensure that some of the properties cannot be disclosed publicly is something which is incorrect bit. Now the next is saying that IPR give owner right to get financial benefit is again absolutely correct. So the correct answer is option number C for this. Move to the next question here. When user share a post in Facebook, he leaves trail of data is called as, so we all know that it is simply active digital footprint. Now say अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं और वहां पे आपने अगर अपना Gmap ओपन किया, so that is we can say active digital. But let's suppose आपके मोबाइल में आपका जो है लोकेशन ऑलरेडी ओपन है, ये आपने ऑन करके ही रखा हुआ है एंड यू डोंट नो आपने कोई एप्लीकेशन ओपन की और वो आपके लोकेशन को यूज कर रहा है. सो दिस इज समथिंग वी कैन से इज पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. GPL स्टैंड्स फॉर, सो वी ऑल नो दैट जनरल पब्लिक लाइसेंस. द नेक्स्ट इज आस्किंग राघव इज मेकिंग ए वेबसाइट. ही वांट टू गेट लाइसेंस फॉर इट, सो देन ही कैन डिसाइड टू गिव राइट टू द रेसिपिएंट्स व्हाट टाइप ऑफ लाइसेंस ही शुड गेट. सो वेबसाइट इज अगेन we can say कि ये क्रिएटिव कॉमन के अंतर्गत आता है. So the correct answer is CC. Next is asking which of the following is primarily designed for providing public license to software. So software के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि GPL लिया जाता है, that is general public license. अगला क्वेश्चन है unlawful activity where fake website or email that look original are presented to the user to fraudulently collect sensitive information of user is called what? So this is simply we can say phishing, क्योंकि ये ऐसा एक्ट होता है जिसमें कि आप इनवैलिड या अनऑथराइज्ड वेबसाइट की लिंक्स को या ईमेल सेंड कर यूजर उसे क्लिक कर दे तो वो क्राइम का शिकार हो सकता है क्योंकि आपकी डिटेल वहां साइबर क्रिमिनल तक पहुंच जाती है. द नेक्स्ट इज सेइंग दैट EULA stands for, so we all know that end user license agreement. The next is asking which of the following is not correct security measure to reduce the risk of cybercrime. So do not visit or download anything from untrusted website. Always secure wireless network at home with strong password and regularly change it is absolutely correct. While using someone else's computer, allow browser to save password or autofill data to save your time is something which is not done by you. बिकॉज ऐसे में तो फिर आपके सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं वो क्रैक हो सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सेफली सिक्योर साइट में जाके, विच इज ऑल्सो करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज सी. आस्किंग दैट टेक टिप नाउ प्राइवेट लिमिटेड हैज क्रिएटेड लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर देयर स्टूडेंट. अब उसके लिए वो लीगल ओनरशिप लेना चाहता है ताकि उसका गलत यूज ना हो सके. तो अब वो चाह रहा है कि उसके नेम और लोगो के लिए उसे क्या लेना चाहिए. तो नेम और लोगो आते हैं ट्रेडमार्क में. अगला क्वेश्चन है कि दे विल गेट पेटेंट फॉर व्हाट. तो पेटेंट जो होगा वो उनको मिलेगा फंक्शनल एक्सप्रेशंस के लिए. जो सॉफ्टवेयर का कोड होता है उसके लिए उसको कॉपीराइट लेना पड़ता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन यूजर एंड क्रिएटर
Permitting to use creation with limitation is called what? So simply we can say is the copyright. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Read the following statement. This question taken from CBSE sample paper of 2020. A copyright is automatically granted to author or creator of the content. बिल्कुल सही बात है. The FOSS means free open source software का जो source code होता है वो generally user से hidden होता है, which is wrong. So the first is true, second is false. अगला क्वेश्चन है, धूमाल इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर. क्या अंतर है दोनों में? तो फ्रीवेयर जो होता है दिस इज अवेलेबल फॉर फ्री एंड शेयरवेयर इज अवेलेबल फ्री फॉर ए लिमिटेड टाइम, विच इज द करेक्ट वन. एंड इसके अलावा जो नीचे के हैं वो करेक्ट नहीं है. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट. फोटोग्राफ कॉपीराइट में आएगा, स्कल्पचर आएगा, सॉफ्टवेयर भी आएगा, लेकिन जो स्लोगन होता है दिस डज नॉट कम अंडर कॉपीराइट बिकॉज ये ट्रेडमार्क में आ जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर विल बी प्रोटेक्टेड अंडर. सो ऑब्वियसली जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि ये आपके कॉपीराइट में आ जाता है. अगला क्वेश्चन है, सिंबल, वर्ड, शॉर्ट फ्रेसेस, स्लोगन्स, ये सारा किस में आता है? तो ट्रेडमार्क में आता है. And the final question of this social impact is asking that the practice of taking someone's work or ideas and passing them off as one's own is known as what? तो भाई इंटरनेट में किसी और के कॉपीराइटेड मटेरियल को आप अपने नाम से शेयर करें या उसका फाइनेंशियल बेनिफिट लेने की कोशिश करें, तो इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी होती है वो प्लेगियरिज्म में आती है. सो ये तो सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप चाहते हैं सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड और ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ना या समझना, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं टू गेट मोर सोशल इम्पैक्ट एमसीक्यूज. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस देखते हैं हमारे क्यूट के लिए. सो द फर्स्ट इज आस्किंग दैट गूगल क्रोम एक्सटेंशन आर व्हाट. सो दे आर बेसिकली कॉल्ड एज एड-ऑन्स, क्योंकि ये सिंपल पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि एज एन एक्सटेंशन वर्क करता है हमारे वेब ब्राउजर के लिए. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. एडिंग फंक्शनैलिटी ऑफ फ्लैश प्लेयर इन ब्राउजर इज कॉल्ड. सो दिस इज कॉल्ड प्लगइन्स. हो सकता है कई बार आप कोई वेबसाइट ओपन करें तो वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्ले करने के लिए फ्लैश प्लेयर डिमांड करे जो आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है. तो क्या होता है कि जब आप फ्लैश प्लेयर को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं, वो रहता है आपके लोकल सिस्टम में है, बट गूगल क्रोम आपके उस फ्लैश प्लेयर को यूज करता है ओवर द इंटरनेट इंफॉर्मेशन को प्ले करने के लिए. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट योर प्लगइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फर्स्ट एड-ऑन्स आर कंप्लीट प्रोग्राम्स. तो अभी मैंने आपको बोला कि प्लगइन्स होते हैं कंप्लीट प्रोग्राम. सो दिस इज रॉन्ग. Add-ons are also referred as extension, which is absolutely correct. And plugins are used to add a particular functionality to the browser is again wrong. So इसमें तीनों में जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है that is only the correct one. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. It is asking that HTML document that include text, images, audio, video, etc. are read by. तो HTML document जो होते हैं they can be read by Google Chrome, Mozilla, both. So the correct answer is 2 and 3. The next question is asking now that यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि HTML डॉक्यूमेंट का मतलब हम बात कर रहे हैं वेब पेजेस की, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे. अगला जो क्वेश्चन है दैट मैपिंग बिटवीन डोमेन नेम एंड IP एड्रेस इज डन बाय. So it is basically done by DNS, that is domain name service. Let's move to the next question that which of the, ये क्वेश्चन शायद कंप्लीट नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं. The next is asking that protocol that facilitate telephone service over the internet is called what? So this is simply we can say is voice over internet protocol, because अगर आपको ऑडियो कॉल्स करनी है या वीडियो कॉल्स करनी है तो ये टेलीफोनिक कॉल्स जो हो रही हैं, एक्चुअली इन अर्लियर डेज हम टेलीफोन यूज करते हैं, बट ओवर द मोबाइल व्हाट वी आर डूइंग, टेलीफोन काइंड ऑफ सर्विस वी आर टेकिंग. दैट्स व्हाई दिस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्चुअली आपको हेल्प करता है इस सर्विस को लेने के लिए. द नेक्स्ट इज सेइंग दैट आपको इन दोनों कॉलम का करेक्ट पेयर बनाना है. तो पहला बोल रहा है इट इज अ सर्किट बोर्ड माउंटेड ऑन कंप्यूटर मदरबोर्ड वेयर ईथरनेट केबल इज कनेक्टेड. तो ये होता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. सो 1 का होगा डी. सेकंड इज सेइंग एक्ट एज अ सेंट्रल डिवाइस इन लैन दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेस. तो सेंट्रल डिवाइस जो होता है वो तो स्विच ही होता है. सो यू कैन से 2 का जो होगा बी होगा. इट कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क एंड हैज द एबिलिटी टू एनालाइज डेटा बीइंग कैरिड ओवर नेटवर्क. सो रूटर होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क आप कनेक्ट कर सकते हैं और इसके पास एबिलिटी होती है कि ये एनालाइज कर सकता है बेस्ट रूट को. एंड द लास्ट इज इट रीजनरेट्स द वीकेंड सिग्नल्स. ऑब्वियसली ये रिपीटर ही होगा.
सो जैसे मैंने आपको बोला थर्ड का A है एंड 4 का देन वी कैन से C. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी ऑल कैन अंडरस्टैंड C इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. केबल टीवी नेटवर्क स्प्रेड ओवर द होल सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. कंसीडर द फॉलोइंग URL एंड आइडेंटिफाई इट्स पार्ट. सो ये https://www.techtipnow